Hello students, how are you all? I hope you all are well. So welcome to your next class. Today we are going to start a topic Kingdom Monera. So in your last class we have discussed there was a scientist whose name was R. H. Whitaker, who proposed 5 kingdom of classification, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay, he proposed 5 kingdom of classification. So today we are going to start one of them. The first one is Monera. So today we are going to start Monera. So Monera is what? Monera is single cell. Single cell means these are unicellular. They don't have a defined nucleus, means they are prokaryotic. If they don't have a well defined nucleus, means it is prokaryotic. So if they do not have nuclear, ठीक है, तो they are nuclear membrane is also absent. Okay, bacteria are also included in this kingdom Monera. ठीक है, means bacteria is the sole member of the kingdom Monera. So they are most abundant microorganisms. Bacteria are also almost everywhere. As we know, bacteria are present in the everywhere in our environments. Hundreds of bacteria are present in the handful of soil. If you put soil, ठीक है, अगर आपने सॉइल मिट्टी में से उठा लिया तो उसमें भी हज़ारों नंबर्स में आप बैक्टीरिया देखेंगे. ठीक है, तो दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशन, वेयर फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव. ठीक है, ऐसी जगह पे ये रह सकते हैं, ये आपके बैक्टीरिया, जहाँ पे सिर्फ कुछ ही लाइफ सर्वाइव कर सकती है. मेनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स. फिर क्या होता है, देखिए, बैक्टीरिया को हम लोग कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं, मीन्स दे आर वर्ल्ड वाइड, दे कैन बी प्रेजेंट एनी वेयर. ओके, तो और बैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट शेप एंड साइज, दे वरीज इन डिफरेंट शेप एंड साइज. तो इन योर बुक देर आर 4 डिफरेंट शेप वी हैव टू स्टडी. फर्स्ट वन इज कोकी, मीन्स स्पायरल शेप्ड, कॉल्ड कोकी. ठीक है, फिर द सेकेंड वन इज रॉड शेप, दैट इज बेसिलियस, एंड द थर्ड वन इज कॉमा शेप, दैट इज विब्रियो, and the last one is spiral spulum, मतलब spirilla. Okay, so these 4 shape we have to study. This is given in Koki, Bacillus, spiral and vibrio. You have to see these diagrams clearly in your book. So next thing we are going to study is the bacteria structure is very simple, but they are very complex in behavior. They look like very simple, but they are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as group show the most extensive metabolic diversity compared to other organisms. Some bacteria are autotrophic in nature, means they can synthesize their own food from inorganic substances. They are photosynthetic autotrophic and chemosynthetic. What is chemosynthetic autotrophic? Means they are autotrophic or heterotrophic both, means your bacteria is autotrophic in nature and heterotrophic both. Like majority of bacteria are in heterotrophic in nature. Autotrophic, if we talk about autotrophic, so autotrophic में they can be photosynthetic or chemosynthetic. Photosynthetic means they have a pigment present, that is chlorophyll, which can do the photosynthetic process and all. फिर chemosynthetic means chemo means chemicals. तो chemosynthetic means the nitrogen fixation, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देते हैं, किस में, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. तो अब हम देखिए क्या होता है कि किंगडम बैक्टीरिया के 2 क्लासिफिकेशंस हैं. ठीक है, 2 क्लासिफिकेशंस यहाँ पे दे रखे हैं, आर्कियो बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. ठीक है, पहला है आपका आर्कियो बैक्टीरिया, दूसरा है आपका यू बैक्टीरिया. तो 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं. पहला हम पढ़ते हैं आर्कियो बैक्टीरिया. तो आर्कियो बैक्टीरिया क्या है? It is a primitive type of bacteria. They act as a eubacteria and देखिए, ऐसा बोला जाता है कि ये जो आपका आर्कियो बैक्टीरिया है, ये एज अ लिंक काम करता है किसके किसके बीच में, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया. मतलब आपके ये जो यू बैक्टीरिया है और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बीच में जो आपका आर्कियो बैक्टीरिया है, एक लिंक की तरह काम करता है. ठीक है, और क्या होता है, देखिए, आर्कियो बैक्टीरिया दे डू नॉट हैव सेल वॉल ऑफ पेप्टोग्लाइसिन, मतलब इनके पास सेल वॉल होती है लेकिन वो आपकी पेप्टोग्लाइकॉन की नहीं बनी होती है. ठीक है, मैं स्पेशली नाम बोल रही हूँ आपको, पेप्टोग्लाइकॉन. इनके पास सेल वॉल होती है लेकिन पेप्टोग्लाइकॉन की नहीं बनी होती है. तो किसकी बनी होती है? ठीक है,
एंड देयर सेल वॉल, मतलब अगर इनकी सेल वॉल पेप्टोग्लाइकोन से नहीं बनी है, पेप्टिडोग्लाइकोन से नहीं बनी है, तो किससे मिलके बनी है? तो एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड जिसका क्या नाम है, सीडोम्यूरिन, ठीक है, सीडोम्यूरिन से इनकी जो होती है सेल वॉल बनी रहती है। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, मतलब ये आपके एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे आपका हेलोफाइट्स, ठीक है, मतलब साल्टी इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये आपका हेलोफाइट्स जैसे हो गया आपका, जैसे साल्टी हेलोफाइट्स मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो आपका साल्टी इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे इसमें इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल में उसका हो गया हेलो बैक्टीरिया, क्या हो गया, हेलो बैक्टीरिया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, जो आपका कौन से इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, हेलोफाइट्स में। फिर आपका थर्मो एसिडोफिल्स हो गए। थर्मो एसिडोफिल्स मतलब थर्मो मीन्स होता है हीट, एसिड मतलब एसिडो मतलब होता है एसिड और पीएच, ठीक है। तो ऐसे इन्वायरमेंट मतलब हॉट स्प्रिंग्स आपके बुक में दे रखा है शॉर्ट में, तो आपके ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसे इन्वायरमेंट पे रह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर है, या एसिडिक मीडियम है, एसिडिक पीएच ज़्यादा है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपका थर्मोकोकस, तो ये हो गया आपके थर्मोकोकस जो आपके थर्मो एसिडोफिल्स वाले इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। फिर आपका मिथेनोजेंस मतलब मार्शी एरियाज, मतलब गट्स आर रूमिनेंट एनिमल लाइक काऊ हो गया आपका, ठीक है। और मतलब और फिर ये दे कैन प्रोड्यूस मीथेन गैस, गोबर गैस, ठीक है। मीथेन गैस को जो हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, जैसे काऊ का डग हो गया, इसमें से ज़्यादा मीथेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया ये, ठीक है, मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, मतलब जहाँ पे मीथेन ज़्यादा प्रेजेंट हो, ये बात हो गई। तो ये हो गए हमारे आर्कियोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हम जिसकी बात करेंगे ये है हमारा यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को हम एक और नाम से जानते हैं, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। दे हैव रिजिड सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लाइकॉन, ठीक है। एंड दे हैव अ म्यूसिलिजिनस सीथ, मतलब क्या कहते हैं, क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनी में भी प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ अगर कॉलोनी में रह रहे होते हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए एक म्यूसिलिजिनस सीथ होती है, जो म्यूसिलिजिनस मतलब म्यूकस वाली, जैसे कि आप ये देखिए डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर का दिखाया जा रहा है साइड में। ये क्या है, ये आपका म्यूसिलिजिनस सीथ है, देखिए आपको दिखाया भी गया है एरो से, ये आपका म्यूसिलिजिनस सीथ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और ये आपका वाटर में भी रहते हैं और कॉलोनीज़ में इकट्ठा होकर रहते हैं, ठीक है। ये भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेटिक करेंगे। और फिर कीमोसिंथेटिक मतलब आपका केमिकल के प्रेजेंस में आपका फूड का फॉर्मेशन करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। और एग्जाम्पल होगा आपका कीमोसिंथेटिक का नॉस्टॉक और एनाबेना, ये दो एग्जाम्पल हैं आपके। पहला है आपका नॉस्टॉक, दूसरा है आपका एनाबेना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। और नॉस्टॉक हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने डायग्राम में देख पा रहे हैं, नॉस्टॉक हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट, ओके। तो ऐसा सेल, इनके पास ऐसा सेल होगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। जो हेट्रोसिस्ट होता है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ATP जनरेट करता है कीमोसिंथेटिक बन के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर क्या है, बट मैंने बताया ना कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो देखिए बैक्टीरिया के जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ मतलब वो हार्मफुल भी होते हैं, मतलब कुछ बेनिफिशियल होते हैं तो कुछ हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं बैक्टीरिया कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला देखिए, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया यूज़ होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर ये दूसरा क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जो बैक्टीरिया जैसे हो गया साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आपका ये क्या तीसरा काम क्या करते हैं, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। फिर चौथा क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स को और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, ठीक है।
जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए, तो आपका जो स्टेप्टोकोकस है वो आपका स्टेप्टोकाइनेस को बना दे रहा है, और स्टेप्टोकाइनेस का क्या काम होता है, वो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट को ब्रस्ट करते हैं। मतलब ये ब्लड क्लॉटिंग में जो हमारा ब्लड क्लॉट हो रहा है, हमारे वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कहीं क्लॉट ना हो पाए, इकट्ठा ना हो पाए, तो उसको वो तोड़ता है, ठीक है। अगर हो रहा है कहीं ऐसा तो उसको ब्रेक करता है। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन ये मैंने बताया ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये बेनिफिशियल है तो हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो हार्मफुल कैसे है, तो बैक्टीरिया कैन काज मेनी डिजीजेज, मीन्स दे कैन बी पैथोजन। पैथोजन मतलब डिजीज़ काजिंग एजेंट। जैसे कौन कौन सी ये डिजीज़ काज कर सकता है, आपकी बुक में पीछे आप जब ये पेज टर्न करेंगे तो देखिए यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। तो देखिए ये बहुत सारी डिजीज़ काजिंग है, जैसे आपका हो गया कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, ठीक है। और प्लांट्स में जैसे आपके सिट्रस कैंकर, पोटैटो में भी बहुत सारी डिजीज़ काज करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज़ काजिंग एजेंट है, ठीक है। और इस ये हो गया इसका बेनिफिशियल, और ये हो गया, इसकी बात कर ली हमने बेनिफिट की और इसके हार्मफुल की। ये बहुत सारे बैक्टीरिया काज करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया कैसे आपका रिप्रोड्यूस करता है। तो नॉर्मली ये बाय फिजन, जो आपकी बुक में ये डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम 2.3, ये देखिए क्या है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल फिजन हो रहा है, ठीक है। डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन। लेकिन एक और बात है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया क्या होता है, शिफ्टेड टू द सेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो वो क्या करेगा, देखिए जैसे आपके बुक में दे रखा है, सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द short of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another। मतलब ये अपना कॉन्जुगेशन मतलब सेल टू सेल कांटेक्ट में आ जाते हैं और फिर अपना ये क्या करते हैं, और एक का DNA दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेशन के थ्रू। दूसरा एक और टर्म है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टर्म होता है, जो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को क्लोनिंग कराए, मतलब बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसमें हम बैक्टीरिया को क्लोनिंग कराते हैं और अपने डिज़ायरेबल जीन्स को उनके अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। या आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा क्या होता है, ट्रांसडक्शन। उसमें क्या होता है, विद द यूज़ ऑफ बैक्टीरियोफेज, एक बैक्टीरिया जैसे मतलब यही चीज़ होती है, मतलब जैसे कि ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन में था कि बैक्टीरिया की क्लोनिंग कराई जाती है और अपने डिज़ायरेबल जीन इंजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, विद यूज़ ऑफ बैक्टीरियोफेज इसमें होता है, किसमें, ट्रांसडक्शन में। फिर यहाँ पे देखिए एक और नया टर्म नीचे दे रखा है, माइकोप्लाज्मा। क्या, माइक्रोप्लाज्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा एक थोड़ा सा अलग तरीके का बैक्टीरिया है, होता है जिसमें दे डोंट हैव सेल वॉल, मतलब इनके पास सेल वॉल भी नहीं है, ठीक है। और दे डोंट हैव सेल वॉल एंड दे कैन ऑल्सो सर्वाइव विदाउट oxygen। they don't have cell wall and they can also survive without oxygen, ठीक है। और they is also disease causing, like they are pathogenic also। तो mycoplasma, this is very important, this line is very important, mycoplasma are also called as the joker of the plant किंगडम। इफ़ इट इज़ एनी, मतलब ये आपके नीट के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। इफ़ कहीं से अगर आपको पूछ लिया कि हु इज़ कॉल्ड एज द जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, तो आपको पता होना चाहिए वो माइकोप्लाज्मा इज़ नोन एज, इज़ कॉल्ड एज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। और इसके लिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे किंगडम मोनेरा की। तो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी लाइन यू विल नॉट गेटिंग अंडरस्टैंडिंग, so you can ask me clearly, okay? Okay, this class is over for today.